Hello, guys, and welcome to an academy. I hope that your preparation of GATE is going very well. So, the month of November has come, the GATE exam is slowly and steadily approaching, and now is the time that you need to speed up your preparation so that you can achieve your dream rank. So, in line of all this, I bring you today this session of how to boost your gate rank. So, in this today's session, I will share with you some very good and realistic tips and strategies that I, at my personal level, and many of my friends who have secured very good rank in gate, they have followed these tips and strategies at their personal level, and these strategies are really very good. And if you incorporate these strategies into your daily routine and lifestyle and preparation, then definitely these will help you and you will be able to maximize the chances of achieving your gate rank. So, before beginning the session, I would just like to give a very brief introduction about myself. So, my name is Yashat Srivastav. I have secured All India rank of 74 in GATE 2021 in chemical engineering stream. So, I am here as a mentor for chemical engineering. So, I prepared for GATE along with a full time job, and I currently have around 1 year of industrial experience also. So, preparing for GATE along with a full-time job is again a very difficult task, but if you follow the right strategy, if you have the right mindset, then definitely with good guidance you can crack GATE along with a full-time job with a very good rank. So uh, moving ahead, so this is the Telegram channel of an academy where you can get access to very good notes and previous year questions discussion also takes place here. So if you have any doubts, you can post these doubts in your groups, and in this group you will also get the notification of any upcoming video lectures of any important topics. So please follow this channel on Telegram. And Unacademy is currently offering two types of subscriptions. So first is the plus subscription, जहाँ पे you will get live classes of the individual subjects. Then of those subjects, weekly test will be there, and then structured courses will be there. Like जैसे एक subject है तो उस subject के अंदर different different जो topics होते हैं उनका structure रहता है, so that one by one you can study through all those courses and you get the entire material in a very streamlined manner, and you have unlimited access to all these lectures and study materials. And apart from that, rank booster questions are also there, and crash courses are also there, which can help you to complete syllabus if you have limited amount of time. Like suppose there is someone who is starting from November, then he needs to follow a certain crash course so that he can complete the syllabus in a short span of time. So these are the benefits of plus, and if you take the iconic subscription, then along with all the benefits of the plus subscription you get access to uh, you will get a personal coach. So the personal coach will have a one-to-one discussion with you. He will tell you about all the strategies or whatever techniques you need to follow. He will also analyze the test series which you attempt, and based on your performance, he will guide you and tell you that which subjects and which topics you need to put more focus on. And so, if you get basically one-to-one guidance, if you take the Iconic subscription, so depending upon your needs and according to your state of preparation, you can opt for either the Plus subscription or Iconic subscriptions. So when you are applying for the subscription, if you use this code YASH810, so this code will help you to get avail a 10% discount on the regular fees. So okay, now moving on to the main content of this video. So how to boost your gate rank. So before beginning, let me clarify कि गेट एग्जाम में इन माय ओपिनियन तीन टाइप के लोग गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं.
पहला कैटेगरी वो होता है जो लाइक फाइनल ईयर या थर्ड ईयर या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स तो काफ़ी रिलैक्स्ड रहते हैं, उनको उतना अभी उस समय वो रियल वर्ल्ड में अभी उन्होंने देखा नहीं है, तो उनको अभी उतना एंग्जाइटी बेसिकली ये सब इश्यूज नहीं होते हैं, तो उनको वो काफ़ी रिलैक्स्ड होते हैं। तो उनके लिए अगर कोई फाइनल ईयर के साथ ही अगर रैंक ले आता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी गेट एग्ज़ाम है। तो पहला कैटेगरी है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। दूसरा है ऐसा स्टूडेंट होगा जो कहीं ऐसा कैंडिडेट होगा जो कहीं एक फुल टाइम जॉब कर रहा होगा और जॉब के साथ वो सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर उसके अलग एम्बिशंस है, हायर एम्बिशंस है, उसको एक हायर स्टडी में परस्यू करना है, या फिर उसको पीएसयू सेक्टर में जॉब की एस्पिरेशन है। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी हो गया जो फुल टाइम जॉब के साथ प्रिपेयर करते हैं। और तीसरी कैटेगरी वो होती है जो एमटेक के साथ करते हैं, और एमटेक के साथ वो किसी अच्छी आईआईटी या मीडियोकर आईआईटी में एमटेक कर रहे होते हैं, और उनको या तो पीएसयू जॉब का एस्पिरेशन रहता है, या फिर मे बी और किसी टॉप मोस्ट आईआईटी में या टॉप मोस्ट कोर्स में उनको अगर एडमिशन लेना है, तो उसमें उसके लिए बेटर गेट रैंक के लिए वो एस्पिरेशन या गेटेड का अटेम्प्ट करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और एक कैटेगरी बेसिकली ये भी है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो फुल टाइम प्रिपरेशन करते हैं ड्रॉप ईयर लेके, तो एक ये भी लार्ज चंक ऑफ ग्रुप है आजकल। तो देखा जाए तो हर टाइप के कैंडिडेट के लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है। स्ट्रैटेजी अलग क्यों होती है? स्ट्रैटेजी इसलिए अलग होती है क्योंकि सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के पास जो अवेलेबल टाइम है, जो टाइम वो डिवोट कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो डिफरेंट है। ऐसा कोई स्टूडेंट है जो फुल टाइम ड्रॉप ईयर लेके प्रिपरेशन कर रहा है, कोचिंग अटेंड करके कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होगी। उसके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, उसके पास सारे मटेरियल हैं पढ़ने के लिए क्योंकि वो कोचिंग भी जा रहा है। तो उसको मतलब उतनी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज या स्मार्ट स्टडी का मतलब इम्प्लीकेशन यहाँ पे नहीं बैठता है, क्योंकि उसको ऑलरेडी उसके पास इनफ टाइम है। तो वो अगर सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है तो ही विल डेफिनेटली गेट अ गुड रैंक। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर जो एमटेक के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, और या फिर जो भी जिसके पास एक लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम है गेट की तरफ डिपोर्ट करने के लिए, तो उनके लिए ये टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, क्योंकि उनके पास एक लिमिटेड अवेलेबल टाइम रिसोर्स है, और उसी टाइम रिसोर्स को उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन के जो सेक्शंस हैं उन्हें एलोकेट करना है। कुछ टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, कुछ टाइम नोट्स बनाने में, कुछ टाइम टेस्ट सीरीज सॉल्व करने में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस या क्या कहिए फेजेस जो होती है प्रिपरेशन में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम उन्हें इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए एक गाइडेंस चाहिए कि किस में आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके बिना रैंक कोई भी आदमी आधा सिलेबस करके या पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा ऐसे एग्जाम दे दिया, तो वो डेफिनेटली अच्छी रैंक नहीं ला सकता। क्योंकि इस समय इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि कोई भी स्टूडेंट आधा कोर्स करके या फिर हाफ हार्टेडली प्रिपेयर करके अच्छी रैंक सिक्योर नहीं कर सकता। तो देयर फॉर one by one I will discuss with you all the important tips and strategies, and depending upon your current phase of preparation and in whatever category you are, as I described, you can follow the strategies, and you may also do some modifications according to your current strategy, because everyone has a unique strategy, as I told. So you can either directly follow these strategies, or you can incorporate these with slight modification as per your wish. Okay, so one by one I will begin. So first of all is the periodic revision. So revision, तो as you all know, is a very important aspect of any कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो रिवीजन एज द नेम सजेस्ट, रिविजन मतलब किसी भी मटेरियल को, किसी भी रिसोर्स को दूसरी बार देखना, रिविजन उसका करना। तो आप मान लीजिए आप कोचिंग स्टूडेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो अगर आप कोचिंग स्टूडेंट हैं तो आपके पास कोचिंग का हैंड रिटन नोट्स होगा, तो वो हैंड रिटन नोट्स का आप टाइम टू टाइम आप रिविजन करते ही होंगे। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो आपको
खुद से एक हैंड रिटन नोट बनाना पड़ेगा, और वो हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप थोड़ा लेट प्रिपेयर करना स्टार्ट किए हैं, तो अगर आपके पास अभी तक कोई नोट्स नहीं है, अगर आप कोई भी कोचिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज उठाने हैं। सपोज सबसे पहले आपने फ्लूइड मैकेनिक्स उठाया। अब फ्लूइड मैकेनिक्स के आप 2001 से या 2000 से 2021 तक के आप सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन आप करके उठाइए, एंड वन बाय वन करके उठाइए, और साथ साथ जो भी उस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड थ्योरी है, जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसको आप किसी, या तो यूट्यूब के किसी वीडियो से, अनअकैडमी के किसी वीडियो से, या फिर स्टैंडर्ड बुक से, या जो भी रिसोर्स आपको इजीली अवेलेबल मिले, उस रिसोर्स से आप उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज को गेन करिए, एंड उसको एक नोट्स बना लीजिए। एंड साथ ही साथ जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको भी एक अच्छे से एक कॉपी में सॉल्व करिए। तो इससे आपके दोनों चीज़ प्रिपेयर हो रहे हैं। एक तो आपका एक सॉल्यूशन बुक प्रिपेयर हो रहा है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के उस सब्जेक्ट का, और दूसरा उस सब्जेक्ट में जो भी अभी तक क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन से जो रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो भी एक जगह आपकी, उसका भी नोट्स तैयार हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करते करते आप एक नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। अब नोट्स तैयार करने के बाद ये आपका मेन नोट्स है। अब मेन नोट्स आपका अराउंड 30 to 40 पेजेस या 50 पेजेस भी अगर बड़ा सब्जेक्ट है, तो इतने पेजेस का आपका मेन नोट्स होगा। अब वो मेन नोट्स क्या है, 30 या 40 पेजेस का जो नोट्स है, वो अगर मान लीजिए आप एंड टाइम पे हैं, लाइक इन जनवरी, इन फेब्रवरी, तो आप 40 पेज के नोट्स को जनवरी फरवरी में या एंड जनवरी के टाइम पे 40 पेज को आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो उस, क्योंकि अगर आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपका 2-3 दिन तो एक ही सब्जेक्ट में निकल जाएगा। आपको मान लीजिए एक वीक में पूरा केमिकल इंजीनियरिंग या आपकी जो भी ब्रांच है उसके उसके नोट्स आपको रिवाइज करने हैं, तो आप 40 पेज एक दिन में तो रिवाइज कर नहीं सकते, जल्दी जल्दी में तो मिस भी हो जाएंगी चीज़ें। तो आपको अपने नोट्स को कंडेंस करना है। ओके, तो वो कंडेंस कैसे करना है, वो कंडेंस करना है इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फॉर्मूला यूज हुए हैं उनको लिखकर, या फिर जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं उनके जो भी पॉइंट्स हैं उनको लिखकर। तो इन सब चीज़ों को आप एक जगह कंडेंस करके आप माइक्रो नोट्स या शॉर्ट नोट्स, अगर आप इसको मैं बोलूँ, तो ये आप बनाइए। तो पहले आप नॉर्मल नोट्स बनाइए हैंड रिटन, उसके बाद उसको कंडेंस करके आप 6 to 8 पेजेस का एक पर सब्जेक्ट का एक शॉर्ट नोट्स या माइक्रो नोट्स बनाइए। ये माइक्रो नोट्स आप एक रजिस्टर लीजिए, एक रजिस्टर में 8 पेज का आपने बनाया, फिर 1-2 पेज आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप जब बाद में फिर से दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे या फिर टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, तो मे बी यू विल कम अक्रॉस सम न्यू फॉर्मूलाज और न्यू वन लाइनर्स और वन सम न्यू थ्योरेटिकल पोर्शन। तो आप उसको वहाँ पे लिखने के लिए हर सब्जेक्ट के बाद 2-3 पेज आप छोड़ दीजिए, उसके बाद उसी रजिस्टर में फिर आप अगले सब्जेक्ट का भी चालू कर दीजिए। तो इस तरीके से करने में, अगर काफ़ी मोटा रजिस्टर है आपका, तो मे बी एक ही रजिस्टर में सारे सब्जेक्ट्स के या पूरी ब्रांच आपकी आ जाएगी, तो वो तो सबसे बेस्ट है। नहीं तो अगर आप पतले रजिस्टर बना रहे हैं, तो 2 रजिस्टर में आपका पूरा ब्रांच का जो भी नॉलेज था वो सब कंडेंस होके आ जाएगा। तो ये जो भी आपका नॉलेज है, वो इस समय एंड के टाइम में वो आपके लिए गीता, महाभारत या क्या बोलते हैं, बाइबल आपके लिए हो जाएगा वो। क्योंकि आप उसको ही रिलीजियसली बस स्टडी कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप पूरा 40 पेज 50 पेज पर सब्जेक्ट वाला नोट्स, जो डिटेल नोट्स है, उसको आप रेफर कर पाएँ। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अब शॉर्ट नोट्स कब बनाएं? अगर आप एंड में बनाएंगे तो वो बहुत हेक्टिक हो जाएगा, तो बेटर यही होता है कि आप साथ साथ बनाएं। साथ साथ बनाने में क्या होता है कि पहली बार आप जब लगा रहे होते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता है, तो वो बात मैं समझता हूँ। तो पहली बार में अगर नहीं बना पा रहे हैं तो दूसरी बार आप बनाइए। पहली बार जब आप सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मे बी आप पहली बार कर रहे हैं तो आपका दिमाग उतना खुला नहीं है, तो आपसे गलतियां भी होने का चांस है, तो पहली बार आप मत बनाइए। लेकिन दूसरी बार में तो बना लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको टालते जाएंगे, सोचेंगे एंड में बना लूंगा, तो एंड में 10 सब्जेक्ट का 11 सब्जेक्ट का बनाना बहुत ही हेक्टिक हो जाता है, तो वो हो नहीं पाता है। इसलिए आप दूसरी बार में दूसरे राउंड में बना लीजिए। उसके बाद आप डेली कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अब डेली आप, हो सकता हो ये भी आपका सबका अलग अलग होता है। कोई ऐसे भी मैंने देखे हैं जो 3 सब्जेक्ट
पर डे पढ़ते हैं, ऐसे भी होते हैं कुछ जो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो जो मैंने फॉलो किया वो ये था कि मैं एक थोड़ा हैवी सब्जेक्ट उठाता था और दूसरा उठाता था एक लाइट सब्जेक्ट। तो हैवी में लाइक इन केमिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव हैवी में मास ट्रांसफर है, थर्मोडायनेमिक्स है, सीआरई है, इंजीनियरिंग मैथ्स है। ये चारों का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। इसको आप बहुत ही वास्ट है, इसको आप कभी भी मतलब कंप्लीटली तो कवर ही नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारी चीजें हैं अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स के साथ जाएं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के ये देखना है कि आपका कौन सा टॉपिक से क्वेश्चंस रेगुलरली आस्क करे जा रहे हैं और उन टॉपिक्स को आपको कवर अच्छे से करना है विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्सेज। तो उसको हैवी सब्जेक्ट मेरी स्ट्रैटेजी थी कि मैं एक दिन में एक हैवी सब्जेक्ट उठाता था और दूसरा एक लाइट सब्जेक्ट। लाइक हैवी में जैसे मैंने बताया, मीडियम में एफएम है, हीट ट्रांसफर है, आईपीसी है, या फिर प्रोसेस डायनामिक कंट्रोल है। तो इनमें से एक उठा लेता हूँ। तो एक हैवी प्लस एक लाइट, एक दिन में अगर आप ऐसा लेके चलते हैं तो ये दोनों बैलेंस रहता है। एक दिन में अगर आप पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो कभी कभी बोरिंग में फिर आपका क्या होता है कि वो जो भी नॉलेज है वो एब्जॉर्ब नहीं होती अच्छे से, तो ये सब इश्यूज भी आते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप दो सब्जेक्ट उठाओ ताकि एक वैरायटी रहे, आप किसी भी एक सब्जेक्ट की तरफ बोर ना हो। तो एक वैरायटी रहेगी। ठीक है। तो एक हैवी उठा लो, एक लाइट उठा लो, या एक हैवी या एक मीडियम, इनमें से ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन बना लो ताकि आपका स्मूथली और विदाउट एनी मोनोटोनसली चलता रहे। ठीक है। उसके बाद मैथ्स एंड एप्टी। मैथ्स के लिए आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक आता है ऑल ब्रांचेस का, वो प्लस एप्टीट्यूड के लिए भी एक आता है ऑल ब्रांच का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो वो आपको ले लेना है। और उसके साथ एप्टीट्यूड में तो कोई थ्योरी है नहीं बट मैथ्स में थ्योरी है। तो मैथ्स में पहले आपको एक फॉर्मूला वाला मतलब एक हैंड रिटन नोट्स वाला पोर्शन आपको कवर करना पड़ेगा। आपको सारा जितना भी फॉर्मूलेज हैं मैट्रिसेस में या प्रोबेबिलिटी में या फिर अलजेब्रा में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनको आपको एक जगह लिखना है। उसके बाद आपको ज़्यादा उसको डिटेल में याद नहीं करना है फॉर्मूले। आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक बुकलेट है डिफरेंट ब्रांचेस की, आपको वो डेली उसके 20 क्वेश्चन लगाने हैं। लाइक 20 में से आप मान लो 10 एप्री के लगा लो, 10 मैथ्स के लगा लो, डेली लगाते रहो लास्ट 2 मंथ्स। तो अगर आप डेली लगाओगे तो क्या होगा कि आपका एक तो पीरियोडिक रिवीजन तो हो ही रहा है क्योंकि आप डेली लगा रहे हो, और प्लस आप कुछ भी इधर उधर का नहीं लगा रहे हो। आपके पास ऐसे ही लिमिटेड टाइम है तो आप वैसे भी ऐसा मटेरियल लगाएंगे ना जो आपको एकदम श्योर शॉट जो आया ही हुआ है पहले। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आप प्रीवियस ईयर लगाने से फायदा यही है कि आप एग्जैक्टली वही लगा रहे हो जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आपका 1% भी आपको फालतू का नॉलेज या फालतू का चीज आप फालतू की डायरेक्शन में बिल्कुल भी अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो ये आप सबसे बड़ा बेनिफिट है। ओके। अब रिवीजन का जैसे मैंने बताया ये तरीका है। रिवीजन करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उन शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करते रहना है। और जो आपका लॉन्ग नोट्स है, जो जो मेन नोट्स है, मेन नोट्स को डिपेंडिंग अपॉन जब आपको रिक्वायरमेंट लगे, आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हैं तो आप उसको रिवाइज कर लो मेन नोट्स को। बट शॉर्ट नोट्स को आप पीरियोडिकली लाइक वीकली रिवाइज करते रहो ताकि वो जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता जाएगा। ओके। सो दिस वॉज द फर्स्ट टिप। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड टिप। तो सेकंड सेकंड टिप ये है, वो है गेट कैलकुलेटर। सो गेट कैलकुलेटर एक ऐसा टूल है जिसको सभी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बहुत से लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रैंक डिसाइडर टूल एंड रैंक डिसाइडर चीज़ है ये। क्या होता है कि गेट कैलकुलेटर आप जानते हैं, गेट में जो भी इंटरफेस होता है उसमें इंटरफेस में आपको एक कैलकुलेटर अवेलेबल होता है। उस कैलकुलेटर में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उन फंक्शंस कैलकुलेटर के उन फंक्शंस को आपको एकदम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको दो टिप्स दूंगा कि आप गेट कैलकुलेटर का जो भी यूज़ है उसको आप कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि एग्जैक्टली वही कैलकुलेटर आप यूज़ करिए जो गेट में आपको मिलेगा, और वो है टीसीएस आयन कैलकुलेटर। तो टीसीएस आयन कैलकुलेटर आपको कहाँ से मिलेगा, आप सीधे सीधे गूगल क्रोम पे जाइए और ये टाइप कर दीजिए कि टीसीएस आयन कैलकुलेटर। तो पहला लिंक जो आएगा आप उसको ओपन करेंगे तो ये कैलकुलेटर खुल जाएगा। तो आप जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर कोई भी आप मॉक टेस्ट या कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपका एक साइड में वो खुला हुआ है तो आप दो विंडो में खोल लीजिए। एक विंडो में आप टेस्ट चलाइए और दूसरे विंडो में मिनिमाइज करके ये वाला आप कैलकुलेटर खोल लीजिए। और
इसी कैलकुलेटर को यूज करके ही आप जितने भी कैलकुलेशन आप करते हैं उसको करिए। एक ये भी लोग करते हैं कि उसका एक ऐप आता है, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और ऐप से टच स्क्रीन से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, बट टच स्क्रीन वहां नहीं मिलने वाला है आपको, वहां पे तो माउस से ही करना है ना। तो ऐसी चीज आप इंटरफेस, मान लीजिए इंटरफेस से आपका थोड़ा कस्टमाइजेशन हो रहा है, बट एग्जैक्ट जो अगर आपको फीलिंग अगर लेनी है तो वो तभी मिलेगी जब आप माउस से उसको यूज करेंगे। तो माउस से आप यूज करिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, यूनिट ऑपरेशन से लगाइए, या फिर जहां से भी आप लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको जब सॉल्व करिए, तो जो भी कैलकुलेशन है आप इस कैलकुलेटर के थ्रू ही करिए। टच स्क्रीन वाले मोबाइल से आप मत करिए, क्योंकि बाद में आपको वहाँ पे टच स्क्रीन नहीं मिलने वाली है, उससे आप मत करिए। आप इसी से करिए, माउस की हेल्प से ही करिए। एंड ये करने से क्या होगा, पहले तो सारे जितने भी उसके इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, लॉग है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, या फिर जो भी फंक्शंस हैं, उनको आप एक तो फ्लुएंट हो जाएंगे उनमें, आपको एक भी सेकंड का हेजिटेशन नहीं होगा टाइप करने में एग्जाम में। और दूसरे इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस भी हैं। स्पेशल फंक्शंस लाइक सेव फंक्शन एक है, होता है, एक रीड फंक्शन होता है, एक इनवर्स फंक्शन होता है। तो उनको करने के लिए क्या होता है, ये सेव फंक्शन का मतलब क्या है कि आपने जो भी, जैसे मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट को मल्टीप्लाई कर करके हम फाइनल वैल्यू तक पहुंचते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो अगर हमें वेंचुरीमीटर का फ्लो निकालना है, तो वेंचुरीमीटर का फ्लो निकालने के लिए एक फॉर्मूला जो होता है, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। लाइक सबसे पहले रूट के अंदर 1 - β4 करके एक होता है पार्ट। तो वहां से क्या होगा कि आप एक एक पार्ट को आप कैलकुलेट करिए। लाइक सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट है उसे कैलकुलेट करो, उसके बाद उसका रूट लेके उसको सेव कर दो, उसके बाद फिर अलग पार्ट को कैलकुलेट करो, फिर सबको आप सेव करके बाद में उसको रीड करके फिर से रीयूज कर सकते हैं। तो आप सेव फंक्शन और रीड फंक्शन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लीजिए, क्योंकि ये आपका बहुत ही हेल्प करेगा। क्या होता है कि कभी कभी गेट में क्या होता है कि जैसे कुछ आंसर आया, मान लीजिए 0.3 आया, बाद में इसका आपको लॉग लेना है, लेकिन वो लॉग डायरेक्टली नहीं लेना है, वो किसी से मल्टीप्लाई करके लेना है। तो यह एक तरीका तो है, ये है कि आप उस जो भी आंसर आया उसको आप लिख लो, बाद में फिर उसको बाद में फिर से वो टाइप करो, फिर वो फंक्शन करो। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपकी एक्यूरेसी लूज होगी। एक्यूरेसी लूज होने से क्या होगा कि मान लो एनईटी क्वेश्चन है, तो एनईटी में क्या होता है कि एक एक पॉइंट से आंसर आपका वेरी आ जाता है, और वेरी होने से आप रेंज के बाहर चले जाते हैं। रेंज के बाहर आप चले गए तो फिर आपका मार्क्स तो मिलने नहीं है। तो जो भी कैलकुलेटर में वैल्यू है, जो भी उसके डिस्प्ले में आंसर आया है, आपको एग्जैक्टली वही यूज करना है। आपको अपनी तरफ से 1% भी एक्यूरेसी नहीं लानी है, अपनी तरफ से एक भी परसेंट का राउंड ऑफ नहीं करना है। तो वो करने के लिए एक ही तरीका है, आप जो भी आंसर आया उसको सेव कर लो, और उसके बाद उसको रीड करके दूसरा फंक्शन या दूसरा आपको टैन करना है, लॉग करना है, कॉस करना है, जो भी करना है वो करो। ये करने से आपका बिल्कुल भी एक्यूरेसी लूज नहीं होगा, और एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो आंसर की में लिखा होगा, अगर आपका अप्रोच सही है तो। उसके बाद एक इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिनमें कुछ डिनोमिनेटर में पार्ट होता है, कुछ न्यूमरेटर में होता है। तो आप साथ साथ सब तो सॉल्व कर नहीं सकते, तो इसमें सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, ये होता है कि आप पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद उसका इन्वर्स निकाल लो, उसके बाद इन्वर्स निकालने के बाद फिर न्यूमरेटर को सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करके या जो भी करके। तो इस तरीके से इन्वर्स फंक्शन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो आप ये इन तीनों फंक्शंस के बारे में थोड़ा आप स्टडी करिए, अगर जो नहीं समझ में आ रहा उसके बारे में और वीडियोस हैं, यूट्यूब पे भी हैं वीडियोस, उनको आप देखिए। और बेसिकली आप गेट कैलकुलेटर को बिल्कुल एकदम हैबिट में ले आइए, कि आपको सारा इसका जो भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी चीज़ें हैं, सब पता हो उसके बारे में। तो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। Okay, so now coming on to the next tip. So the next is solution book. तो ये मैंने जैसे कि पहले टिप में बताया था, जब मैंने पीरियोडिक रिवीजन के बारे में बताया था, कि आप जब आप अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने कोचिंग नहीं करी है कोई, या खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं सेल्फ स्टडी से, तो आपको पहली बार जब आप नोट्स बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो पहली बार जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करिए, और जो भी क्वेश्चन में थ्योरी पूछी गई है उस थ्योरी को आप थ्योरेटिकल स्टडी करिए, जो भी आप स्टैंडर्ड बुक्स है या फिर रिसोर्सेज आपके पास हैं उससे रीड करिए, या फिर आपके पास मान लीजिए अन अकेडमी से, यूट्यूब से
वीडियोज़ हैं उसको आप देखिए, तो इस तरीके से आप उसका नोट्स बना लीजिए। तो नोट्स बनाने के साथ-साथ आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का भी एक प्रॉपर सॉल्यूशन बुक बना लो। सॉल्यूशन बुक बनाने से क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 5-6 बार लगाने होते हैं, ताकि अच्छे से आपका बेसिकली फ्लो आ जाए। तो वो 5-6 बार लगाने में क्या होता है कि आप तीसरी बार लगाते हो, चौथी बार लगाते हो जब, तो हो सकता हो कि कुछ क्वेश्चन में डाउट आ जाए। क्योंकि आप कुछ टाइम स्पेंड जब बीत जाता है ना, तो चीज़ें भूलने लगती हैं, तो थोड़ा डाउट आता है माइंड में। तो वो माइंड में डाउट जो आ रहा है वो 1 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा, अगर आपने ये सॉल्यूशन बुक बनाई होगी। नहीं बनाई होगी तो फिर आप उतना ही टाइम वेस्ट करोगे जितना आपने पहली बार सॉल्व करने में लगाया होगा। क्योंकि आपने क्या सॉल्यूशन, आपने क्या रेफर किया, आपने क्या पढ़ा पहली बार में, या आपने मान लो कुछ अलग सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन आपने पढ़ा था, बट अब फिर वो मिल नहीं रहा है, या ऐसा कुछ भी सिचुएशन आ सकता है कि वो सॉल्यूशन जो आपको पहली बार आपको अच्छा मिला था, जिससे आपको समझ में आया था, वो तीसरी बार में ना मिले, सॉल्व करने में ना मिले। तो ऐसे में आप अगर सॉल्यूशन बुक बनाए होते हो, तो उसमें एग्जैक्टली जो आपको पहली बार में समझ में आया होता है वो आप लिख लो, या दूसरी बार में आया होता है वो आप लिख लो। उसको बाद में फिर जितनी बार भी एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स आप सॉल्व करोगे, तो उसको आप बार बार देखते रहो। तो इससे क्या होता है, आपका जो बाद में रिवीजन कर रहे हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो उसमें एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं होता। अगर आपको डाउट आता है तो आपने तुरंत रेफर करा, आपको फिर से सब रिकॉल हो जाएगा, तुरंत रिकॉल हो जाएगा। ये तो बहुत ही सॉलिड आपका स्ट्रैटेजी है। ओके। और कुछ क्वेश्चंस, हाँ, मैं ऐसा भी मानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रियल में बहुत टफ होते हैं, बहुत ही ट्रिकी होते हैं, या आउट ऑफ ट्रेंड होते हैं, जो मतलब रेगुलरली गेट पूछता नहीं है, बट सिंस गेट ने एक दो बार पूछा हुआ है, तो उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एक एक मार्क्स से यहाँ पे बहुत डिफरेंस आ जाता है कंपटीशन में, या फिर बाद में जब आपको पीएसयूज का कॉल आता है, या फिर जब उनका लिस्ट बनता है, तो एक एक मार्क्स से बहुत डिफरेंस आता है, तो आप एक भी चीज़ को निगलेक्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। तो आप ट्राई करो कि अगर कोई क्वेश्चन आपको बहुत टफ लग रहा है या ट्रिकी लग रहा है, या फिर आप जब भी सॉल्व करो ना, तो अपने आंसर को 2-3 रिसोर्सेज से मैच कर लो, सो दैट यू कैन बी फुल श्योर, 100% फुल प्रूफ आपका आंसर जो भी है, या फिर अप्रोच जो भी है पर किसी क्वेश्चन के प्रति, वो एकदम सही होना चाहिए। तो इसके लिए आप मल्टीपल रिसोर्सेज से एक बार वेरीफाई भी कर लो। इससे बेनिफिट ही रहेगा, आपका थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट आपका ये इंश्योर रहेगा कि कोई गलती नहीं हो रही है, क्योंकि पहली बार पढ़ने में या दूसरी बार पढ़ने में जो भी कॉन्सेप्ट में गलती अगर रहती है, तो वो गलती फिर आपकी चलती आती है, फिर वो जल्दी रेक्टिफाई नहीं हो पाती है। इसलिए बेटर यही रहता है कि आप पहली बार या दूसरी बार जब आप सॉल्व कर रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तभी आप जितनी भी गलत अप्रोच या फिर कोई भी होता है ना, गलत नॉलेज अगर आ रही है आपको, तो उसको आप रेक्टिफाई कर लो। क्योंकि गलत नॉलेज ज़्यादा खराब होती है नो नॉलेज से। अगर आपको नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अगर आता है, आपने गलत कर दिया, तो फिर क्या होगा कि आपको पहले तो रिग्रेट भी होगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो वो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी उससे आपको। तो बेटर यही है कि आप 2-3 रिसोर्सेज से वेरीफाई कर लो, एंड अगर कुछ गलती हो रही है तो रेक्टिफाई कर लो। नाउ नेक्स्ट इज वॉइस नोट्स। सो ये थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो कि जॉब कर रहे हैं। तो जॉब जब करते हैं, तो आपको मतलब ट्रैवल करना पड़ता है, तो कम्यूट टाइम आपका थोड़ा फ्री टाइम जैसा ही होता है। उसके बाद आपको लंच टाइम में थोड़ा टाइम मिलता है, तो ये सब टाइम को यूटिलाइज करने का तरीका है वॉइस नोट्स। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, या फिर इम्पोर्टेंट यू नो फॉर्मुलेज ही हैं, या फिर अप्रोच है, तो उसका आप एक वॉइस नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाइए। उस नोट्स को बनाइए, और उसको जब आपका कम्यूट टाइम है, या फिर वही लंच टाइम है, या ब्रेक्स है, उसमें आप उसको सुन लीजिए। सुनने से पहली बात तो ज़्यादा नॉलेज अब्जॉर्ब होती है इन कंपैरिजन टू यू नो लिखने से, क्योंकि सुनने से आप फील कर रहे हो उसको, आप माइंड में रिकॉल भी कर रहे हो। तो voice notes are very effective, and I used to make a lot of voice notes of important topics like fluid mechanics में boundary layer हो गया, मल्टी इफेक्टिव apparatus हो गया, तो इसमें से बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इनके आप वॉइस नोट्स बना लो। वॉइस नोट्स को बना के आप जब भी आपको फ्री टाइम मिले, फ्री टाइम में आप इसको सुन लीजिए। सुनने से आपका टाइम भी सेव होगा, प्लस आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, एंड यू नो ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब भी होंगी चीज़ें। सो आफ्टर वॉइस नोट्स वन मोर थिंग इज कि ये आपको करना है फॉर्मूला प्रैक्टिस। ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है, बट ये आपको करना है लास्ट के 30 डेज में, लाइक इन जनवरी में करना है। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। आपने
आपको बस जो भी आपकी फॉर्मूला बुक है जो मैंने बताई थी माइक्रो नोट्स, वो आपको अपने साथ रखनी है। उसके साथ आपको एक लेनी है ब्लैंक A4 शीट, या फिर आपके पास एक व्हाइट बोर्ड अगर है तो वो तो और भी अच्छा है। तो आप A4 शीट लो या फिर व्हाइट बोर्ड लो, उस पे सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट हो जाओ। अब सब्जेक्ट वाइज जितने भी फॉर्मूले उस आपके उस फॉर्मूला शीट में या फिर जो भी आपके माइक्रो नोट्स में है, उनको एक एक करके जॉट डाउन करते जाओ बिना फॉर्मूला बुक को देखे। इससे क्या होगा कि आपका रिकॉलिंग पावर आपका इंप्रूव होगा। रिकॉलिंग पावर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि फाइनल एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम ऐसे आते हैं जो कि होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें आपको एक भी परसेंट का दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। लाइक ओरिफिस मीटर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, वेंचुरी मीटर वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, या फिर अर्गन इक्वेशन वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, तो उसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो इन दो क्वेश्चंस, फॉर्मूला अगर आपको टिप्स में रहेगा तो ये क्वेश्चंस तुरंत सॉल्व हो जाएंगे और इनमें कोई भी मार्क्स आपके लूज नहीं होंगे। तो इसको करने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे A4 शीट लेनी है या फिर व्हाइट बोर्ड लेना है, और उस पर डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे की एक्टिविटी है, डेली सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट हो जाओ, सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उनको लिख डालो। और फिर एक बार अगर कहीं डाउट लग रहा है तो आप जो आपकी माइक्रो नोट्स है या फिर मेन नोट्स में भी इसे देख सकते हो। अगर अगर कुछ ज़्यादा डाउट लग हो तो वहाँ से एक बार वेरीफाई कर लो, और इस तरीके से आपका सारा फॉर्मूला आपका टिप्स पे आ जाएगा। ओके, now the next is test series. So test series is also something which you need to follow in the last time, like in January. तो टेस्ट सीरीज में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो तीन तीन टेस्ट सीरीज लेके बैठे रहते हैं, बट वो उसमें से एक भी अच्छे से नहीं लगाते हैं। तो टेस्ट सीरीज का देखिए ऐसा है कि टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी है, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैंने सिर्फ एक टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, बट सिर्फ मैंने 7 to 8 टेस्ट ही सॉल्व करे थे क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही टाइम था, तो मैं उतना लगा नहीं पाया था। बट मेन टेस्ट सीरीज का पर्पस ये है कि आपको 3 आवर सिटिंग का हैबिट डेवलप कराना। तो 3 आवर सिटिंग का हैबिट डेवलप हो जाएगा अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज लगाते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप 10 to 15 टेस्ट लगा लो, दोज आर मोर देन एनफ। आपका 15 टेस्ट देने के बाद आप 3 आवर्स का सिटिंग आपका डेवलप हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको टेस्ट सीरीज नहीं लगानी है या फिर आपने टेस्ट सीरीज नहीं ली है, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव भी है। आप क्या करो, 2001 से लेकर 21 के पेपर्स को आप एज अ होल गेट पेपर सॉल्व करो, लेकिन 3 आवर्स नहीं, 2 आवर्स में सॉल्व करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्वेश्चंस देखे हुए हैं। तो आपको सिर्फ पूरा पेपर सॉल्व करने, एक साथ सॉल्व करने का आपको हैबिट डालना है। आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करने का आपको हैबिट डालना है। तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी है कि आप जितने भी गेट पेपर्स हैं 2001 से लेकर 21 के, आप उनको ईयर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ईयर वाइज ये भी आपको जनवरी में या फिर दिसंबर में करना है, बहुत पहले से करने का मतलब नहीं है। दिसंबर जनवरी में करिए और स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में करिए, विदाउट सो लुकिंग इनटू द सॉल्यूशन बुक या फिर फॉर्मूला बुक। वहाँ से नहीं देखना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। और जितने मार्क्स आए उनको आप थोड़ा देखते भी रहो कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक बार तो ये सब क्वेश्चन लगाए हुए हैं, तो लो मार्क्स तो नहीं आने चाहिए क्योंकि आपने लगाया रखा है क्वेश्चंस। एंड ये आपको मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ 2 आवर्स में ही सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको 3 आवर्स अगर लग रहे हैं तो फिर मतलब आपको अभी मतलब फॉर्मूले टिप पे नहीं है या फिर कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं, बट आपको 2 आवर्स में ही ट्राई करना है कि सॉल्व करने का ये वाले पेपर्स। ये हो जाए या फिर आप कोई एक टेस्ट सीरीज लेके उसको अच्छे से लगाओ, उसके 10-15 पेपर्स लगा लो स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में, वो भी मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा बेटर यही है कि आप अपने नोट्स को रिवाइज करते जाओ, नोट्स को रिवाइज करते जाओ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिवाइज करते जाओ। ओके, सो हाँ, अब वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज एरर नोटबुक। सो जैसा कि कोट ये लिखा हुआ है कि द ओनली रियल मिस्टेक इज द वन फ्रॉम विच वी नेवर लर्न इन नथिंग। तो क्या है कि ऐसा आप कोई मिस्टेक करते हैं जिससे आप सीख नहीं रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो जब आप टेस्ट देंगे या मॉक टेस्ट देंगे या फिर टेस्ट सीरीज के या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आप एज अ फुल पेपर देते हैं, तो होंगे बहुत सारे एरर्स होंगे। अब वो एरर्स कैसे हो सकती हैं, या तो वो कंसेप्चुअल एरर हो सकते हैं। अब कंसेप्चुअल एरर जो होते हैं उनको सॉल्व करना तो थोड़ा टफ है। अब उनको अगर सॉल्व करना है तो फिर आपको अपना नोट्स ही वेरी करना पड़ेगा, अपना नोट्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या गलत हो रहा था। वो देखने के बाद अगर कोई फॉर्मूला में
प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे मान लो अगर आपने गलत फॉर्मूला याद कर लिया है, तो ये आपको लिखना चाहिए उसमें एक एरर नोटबुक में कि मैंने ये फॉर्मूला गलत याद कर लिया है, एंड अब मैं इस एरर को आइडेंटिफाई कर चुका हूँ और मैं आगे इसको अब रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मेट्रिक टन का भी एक क्वेश्चन आया था 2020 में। तो बहुत से बच्चों को वो भी नहीं पता था कि वो 100 होता है कि या 1000 होता है, तो यूनिट कन्वर्जन में भी एरर होने का चांसेस होते हैं। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर कुछ भी सॉल्व करो, तो जो आपको नहीं आ रहा है, जिस भी पॉइंट पे आपकी सिली मिस्टेक हो रही है, तो आप उसको लिख लो। वो लिखने से क्या होता है कि आप जब उसको लिखते हो ना, तो वो आपको बाद में याद रहेगा कि मैं यहाँ गलती करता था। तो चांसेस ये हैं कि जब बाद में आप फिर से उस सिचुएशन में जाओगे, तो आप मे बी वो गलती नहीं करोगे। ओके। एंड एक बोनस टिप और मैं ये दूंगा कि एक अगर आप टेस्ट सीरीज लगाते हो ना, जब या फिर कोई आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में या टेलीग्राम ग्रुप्स में अगर आप रहते हो, उसमें डाउट सॉल्व के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो गेट लेवल के ही होते हैं। तो उनका अगर आपको ऐसा कोई जेन्युइन क्वेश्चन दिखता है, तो आप उसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, उसका आप एक पीडीएफ भी बना लो। उस पीडीएफ को आप रेगुलरली सॉल्व करते रहो, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो रहता है मटेरियल, वो क्या होता है कि जब आप 4-5 बार सॉल्व कर लेते हो, तो फिर वो लगता है कि ये क्या ही बार बार उसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ी वैरायटी चाहिए ना। तो वो वैरायटी ऐसे क्वेश्चन से ही आती है। लेकिन वो आपको जब आप 3-4 बार लगा लोगे ना गेट क्वेश्चंस, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि गेट का लेवल क्या है, और गेट का लेवल क्या है, और गेट का क्या मांगता है, गेट किस टाइप का क्वेश्चन वो देता है। तो तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा गेट लेवल का क्वेश्चन है, कौन सा नहीं है। तो जो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन अगर जब आपको मिलते हैं फ्यूचर में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसका एक पीडीएफ बना लो, और उस पीडीएफ को आप रेगुलरली रिवाइज करते रहो। ये भी अच्छा अप्रोच है। ओके, सो वन मोर थिंग इज देयर कि नैट्स, हाँ, नैट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन जो होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, तो इसमें क्या होता है कि एक्यूरेसी का बहुत इशू आता है, मुझे भी आता था। इसमें क्या होता है कि आपका मान लो 28.5 आंसर है, लेकिन आपका आंसर 24.5 आ रहा है। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं, ये सब एरर होते हैं। तो इनको कैसे आप सॉल्व करोगे, इनको कैसे आप रेक्टिफाई करोगे? तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहला तरीका तो यही है कि आप कैलकुलेटर को अच्छे से यूज़ करो। कैलकुलेटर में अपनी तरफ से एक भी राउंड ऑफ नहीं करो, और जितने भी उसके जो स्पेशल फंक्शंस है, रीड है, सेव है, इनवर्स है, उनको यूज़ करके करो, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसके बाद आप जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप उनको भी नैट मांग के चलो। आप जब क्वेश्चन देखो, तो उनका ऑप्शन मत देखो कि 4 ऑप्शन क्या दिए हैं। आप एग्जैक्ट आंसर अचीव करने का या कैलकुलेट करने का ट्राई करो। मे भी टाइम ज़्यादा लगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो टाइम का बाउंडेशन तो है नहीं अभी। टाइम लगने तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट आप एग्जैक्ट आंसर पर अराइव करने का ट्राई करो। तो इससे क्या होगा कि जब आप बिना ऑप्शन देखे एग्जैक्ट आंसर पे अराइव करने का ट्राई करोगे, तो आप देखोगे कि आप एग्जैक्ट आंसर जब आता है ना, तो फिर मतलब आपका कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक भी नहीं है, और ये कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है। दोनों मिस्टेक अगर नहीं है, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप ऐसे लगाओगे एमसीक्यू क्वेश्चन को, तो ये फायदा होगा आपका, कंसेप्चुअल नॉलेज भी स्ट्रांग होगा, प्लस आपका कैलकुलेशन स्किल भी स्ट्रांग होगा, दोनों ही होंगे। उसके बाद एक चीज और आपको देखनी है कि जो भी गेट का क्वेश्चन है, उसमें मांगा क्या है उसको। उसने इंटीजर में मांगा है, या फिर 2 डेसिमल प्लेस तक मांगा है, या फिर 1 डेसिमल प्लेस तक मांगा है। और जितना भी मांगा है, आप कैलकुलेटर से एग्जैक्टली जो भी कैलकुलेटर में के डिस्प्ले में आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली वही टाइप करो। अपनी तरफ से कुछ भी राउंड ऑफ मत करना, ठीक है? क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से करा, तो वो मे बी गेट फिर अपने तरह गेट तो फिर मतलब वो जो भी लिखा रहेगा उसको ही फॉलो करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि आपने रेंज से बाहर आपका किस लिए गया, आपने ये कर दिया, फिर बाद में चैलेंज करोगे आप, मे बी नहीं होगा वो। तो ये सब में नहीं पढ़ना है। जितना भी वो गेट ने मांगा है, उतना ही डेटा देना है, उतना ही आंसर टाइप करना है। ओके, सो ये थोड़ी लास्ट लास्ट टिप ये है। कॉमन ब्रांच सब्जेक्ट्स कुछ होते हैं, लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स है, जो कि मेरे ख्याल से मैकेनिकल में भी होता है और सिविल में भी होता है। हीट ट्रांसफर थर्मो है, ये भी मैकेनिकल और मैकेनिकल का कॉमन है, हीट ट्रांसफर एंड थर्मो। तो ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर आपके पास बहुत टाइम है, लाइक सपोज आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आपके पास लाइक 6 मंथ से आप प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत टाइम है,
तब आप क्या करो कि जब आपका अपनी ब्रांच का पूरा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, आप 4-5 बार अपनी ब्रांच का सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, तब आप क्या करो कि दूसरी ब्रांच का भी आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन सब्जेक्ट्स का, लाइक एफएम का, हीट का, थर्मो का, प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल का भी है मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिकल का कॉमन है, तो आप उनका भी ले लो। मैथ्स का तो लगाना ही है, बट इन सब का भी अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तभी आप लगाओ। ये ऐसा नहीं है कि ये आपको करना ही करना है, ये ऑप्शनल चीज़ है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तभी आपको फॉलो करना है। तो ओके, तो ये फॉलो करने से आपका थोड़ा और अच्छा प्रैक्टिस होगा। आप अगेन रिलेवेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, क्योंकि सिंस दीज आर क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन गेट, मे बी इन अदर ब्रांच बट स्टिल दे आर आस्क्ड। सो ये एक अच्छा एक्टिविटी है अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तब। सो these were all, I think. Yes, so these were it. So I think I have detailed, in a detailed manner I've explained all the tips and strategies, and जो भी आपको इनमें से हेल्पफुल लगे आप उसको प्लीज़ अपने स्ट्रैटेजी में आप इसको फॉलो करो, इसको अपने रूटीन में डालो, हैबिट में डालो। एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर आप अच्छे से इन सब स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे, अगर आप इनको रूटीन में लाएंगे, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रैंक। एंड बस ऑल द बेस्ट, एंड thank you. And if you have any doubts, you can post them in the comments, and I will clear all your doubts. Okay, thank you.